بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا میڈیم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، اس کو اردو میں لاتے ہیں تاکہ سب زیادہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریپریشن آف الکائل ہیلائڈس اور پریپریشنز آف ہیلو الکینز۔ سو وی ہیو اے پریپریشنز آف ہیلو الکینز۔ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے پریپریشن آف ہیلو الکینز، دیٹ از آر بانڈ ایکس جو ہیں، اس قسم کے کمپاؤنڈ ہمیں تیار کرنے ہیں۔ تین مین طریقے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارے پاس ہیلوجنیشن آف الکینز ہیں۔ یہ طریقہ کار ہم پڑھ چکے ہیں شاید پہلے اس سے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیلوجنیشن آف الکینز۔ ہیلوجنیشن آف الکینز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی الکین کو اس کے ہیلوجنز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں سن لائٹ کی موجودگی میں، 400 ڈگری سینٹی گریڈ یا 400 ڈگری سینٹی گریڈ کی موجودگی میں، اس کو فوٹو کیمیکل ریئیکشنز کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے پاس الکائل ہیلائڈس حاصل ہوتے ہیں اور ہیلوجن ایسڈ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی سا بھی جو ہے اگر آپ لیتے ہیں الکین، آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کسی بھی ہیلوجنز کے ساتھ، تو جو پروڈکٹ آپ کو حاصل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ پروڈکٹ ہمارے پاس حاصل ہوں گے الکائل ہیلائڈ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ ہیلوجن ایسڈ۔ تو یہ ہمارے پاس ان کے پروڈکٹس ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ جو طریقہ ہے، it is not considered as good method for the preparation of alkyl halide because in this method we get a mixture of alkyl halides and this mixture needs to be further work up۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے پھر سپریٹ کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس جتنے بھی اس میں ہائیڈروجن ایٹم ہوتے ہیں، سب کے سب ہائیڈروجن ایٹم ایک ایک کر کے ریپلیس ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹس حاصل ہوں گے اور ان ڈفرینٹ پروڈکٹس کو پھر ایک مکسچر بنے گا، اس مکسچر کو پھر آپ نے کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے سپریٹ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بیسٹ میتھڈ کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ مثلا اگر میں اس طرح کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے CH4 ہے، اور اس CH4 کو اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل کلورین کے ساتھ، تو آپ کے پاس جو پروڈکٹ حاصل ہوں گے وہ ہوگا، ایک حاصل ہوگا CH3Cl حاصل ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کلورو میتھین کہتے ہیں۔ دوسرا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا CH2Cl2 ہوگا، جس کو ہم ڈائی کلورو میتھین کہتے ہیں۔ تیسرا پروڈکٹ جو ہے وہ CH Cl3 ہوگا، جس کو ٹرائی کلورو میتھین یا بعض اوقات کلوروفارم بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا پروڈکٹ اور آخری پروڈکٹ جو ہے وہ CCl4 ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کاربن ٹیٹرا کلورائڈ یا ٹیٹرا کلورو ایتھین۔ اب یہ جو پروڈکٹس ہیں، یہ چاروں پروڈکٹ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اب ان چاروں پروڈکٹس میں کچھ پروڈکٹس جو ہیں، یعنی کچھ چیزیں میکسیمم مقدار میں ہوں گی، دیٹ ڈیپینڈس اپان دا کنسنٹریشن آف دا اسٹارٹنگ الکینس ان دا ہیلوجنس۔ اگر آپ کے پاس الکین کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو فائنل پروڈکٹ ہوگا یا فائنل جو مکسچر بنے گا اس میں مونو کلورو میتھین جو ہے اس کا کنسنٹریشن زیادہ ہوگا، دیٹ از اٹ ول بی دا میجر پروڈکٹ۔ اور اگر آپ کے پاس ہیلوجن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ کو جو آخری پروڈکٹ ہے یعنی کاربن ٹیٹرا کلورائڈ، وہ میجر پروڈکٹ کے طور پہ حاصل ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بیسٹ میتھڈ نہیں ہے پریپریشن آف الکائل ہیلائڈس کے لیے۔ دوسرے بھی ہمارے پاس طریقے ہیں، لہٰذا ان دوسرے طریقوں کی جو ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو میتھڈ ہے وہ ہے پریپریشن آف الکائل ہیلائڈس ہے بائی ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ۔ اب ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ جو ہے وہ ایسے ایجنٹس ہوں گے جو کہ کسی مالیکیول کو ہیلوجنیٹ کر سکے، یعنی وہ اس مالیکیول کے ساتھ وہ ہیلوجنس جو ہیں ان کو کمبائن کر سکے۔ اس قسم کے ری ایجنٹس کو ہم کیا کریں گے؟ ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ۔ ہمارے پاس تین قسم کے ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پاسپورس ہیلائڈس ہوتے ہیں۔ اب پاسپورس ہیلائڈس جو ہے خود سے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پاسپورس ٹرائی ہیلائڈ ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ پاسپورس پینٹا ہیلائڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ تو یہ ہو گئے۔ دوسرا جو ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ ہے وہ ہے ہیلوجن ایسڈس، یعنی HX مالیکیول جو ہے، ہاں وہ HCl ہو، HBr ہو، HI ہو، HF ہو، تو یہ ہمارے پاس ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ ہے۔ اور فائنلی آخری جو ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ ہے وہ ہے تھائیونائل کلورائڈ۔ تھائیونائل کلورائڈ کا فارمولہ SOCl2 ہے، SOCl2 یہ کمپاؤنڈ کہلاتا ہے تھائیونائل کلورائڈ۔ اب یہ جو تینوں ہیں، یعنی پاسپورس ہیلائڈس ہیں، ہیلوجن ایسڈس ہیں اور تھائیونائل کلورائڈ، یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیلوجنیٹنگ ایجنٹ۔
तो अगर हम अल्कोहल्स को इस तीनों में से किसी भी हेलोजेनेटिक एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा दैट विल बी एन अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड से हासिल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है वो अगर आप अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो होगा RCl होगा, दैट इज़ अल्काइल क्लोराइड होगा। उसके अलावा ये जो दो बनेंगे ये उसके साथ बाई प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास मेन रिएक्शन या मेन प्रोडक्ट जो होगा वो है अल्काइल क्लोराइड। उसके अलावा अल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। मसलन आप अल्काइल ग्रुप जो है उसको ले सकते हैं CH3 भी ले सकते हैं। आप अल्काइल ग्रुप जो है उसको C2H5 भी ले सकते हैं। आप अल्काइल ग्रुप जो है उसको आप C3H7 भी ले सकते हैं। ये कोई सा भी अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो रिएक्शन हमने नोट किया हुआ है, तो ये एक जर्नल रिएक्शन होगा। इट मीन्स इट कैन बी अप्लाइड टू एनी अल्कोहल whether it's a primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. So it can be any alcohol. अगर ये हेलोजन यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच हो तब भी जो है आपके पास ये अल्काइल हैलाइड हासिल होगा, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच हो ये दूसरी पोजीशन पे, तब भी आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड हासिल होगा। मतलब अगर आपके पास वो पहले कार्बन पे अटैच है, दूसरे पे अटैच है, तीसरे पे अटैच है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमेशा अल्काइल हैलाइड ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो तरीक़ाकार है वो वही है, तकरीबन वही तरीक़ाकार है, लेकिन हमने यहाँ पर रिएजेंट जो है वो PCl5 की जगह PCl3 लिया हुआ है। लिहाजा आपके पास यहाँ पर 3 अल्कोहल्स के मालिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 3 अल्काइल क्लोराइड्स हासिल होंगे और उसके साथ H3PO3 जो है हासिल होगा, जिसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं। तो ये कंपाउंड अगेन अल्काइल हैलाइड्स प्रिपरेशन के लिए। आखिरी जो तरीका यहाँ पर दिया हुआ है वो है हमारे पास अल्कोहल्स अगर आप ताइनॉल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अल्काइल क्लोराइड हासिल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अब HCl गैस हासिल होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, जो मीडियम इस्तेमाल होता है, वो अमूमन जो है वो पायरिडीन होता है। तो पायरिडीन जो है वो इस तरह का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन रिंग होता है, 6 मेंबर रिंग होता है, जिसमें एक जो है नाइट्रोजन ग्रुप होता है, तो इसको कहते हैं पायरिडीन। पायरिडीन बेसिकली रिफ्लेक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है, जो गैसेस यहाँ पर बनते हैं उसको रिफ्लेक्स आउट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये भी बताते चलूँ कि आपके पास जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है ये थायोनाइल क्लोराइड जो है, अगर आप उसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये जो सब्सटेंसेस बनते हैं, HCl बनता है, SO2 बनता है, तो ये दोनों गैसेस हैं और ये दोनों गैसेस जो हैं वो एस्केप हो जाते हैं। लिहाजा हमारे पास प्योर जो अल्काइल हैलाइड होता है वो हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर फर्दर वर्कअप की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं होती, आपके पास प्योर प्रोडक्ट हासिल होगा। सो दिस इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये भी याद रखें कि ये जो तरीक़ाकार है इसको हम कहते हैं डार्जीन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आखिरी जो तरीक़ाकार है उसको अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करते हैं हेलोजन एसिड के साथ। अब अल्कोहल को अगर आप हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल चूँकि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपके पास हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, उसके अलावा जो है वो टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, फिर उसके बाद जो है टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। अगर आप रिएक्शन ऑर्डर देखें तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन फास्ट करेगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल से। तो अगर आप कोई सा भी टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं उसका रिएक्शन फास्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो सबसे स्लोवेस्ट होगा किसी भी पर्टिकुलर हेलोजन एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल HCl के साथ आपको ट्रीट करते हैं, HBr के साथ आप ट्रीट करते हैं, किसी भी के साथ भी ट्रीट करें तो जितने भी आपके पास जो टर्शियरी अल्कोहल होंगे तो टर्शियरी अल्कोहल्स के रिएक्शन जो है वो अमूमन वो फास्ट होते हैं। यहाँ पर ये टर्शियरी अल्कोहल अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। अगर आप कोई सा सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल के रिएक्शन जो है वो क्या होंगे, वो फिर स्लो होंगे और इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे स्लो होगा। अगर आप हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी की बात करें तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसका रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है हाइड्रोजन क्लोराइड से। इनफैक्ट जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस जिंक
क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे। अब ये जो चीज़ है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl, इसको फिर कहा जाता है ल्यूकॉस रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकॉस रिएजेंट। और ये ल्यूकॉस रिएजेंट ही है जिसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस टेस्ट को हम कहते हैं ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। तो ल्यूकॉस टेस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ से हमें पता चलता है कि ये फला जो है जो रिएक्ट कर रहा है ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। So in this method, if alcohol is treated with the halogen acid, then it will produce alkyl halides। हमारे पास alkyl halides हासिल होंगे। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं CH3 है और CH3OH जो है यानी मीथेनॉल को आप ट्रीट करते हैं, सपोज HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर HCl के साथ याद रहे कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ज़रूर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसके बगैर रिएक्शन जो है वो इंतहाई स्लो होता है। तो आपको जो प्रोडक्ट हासिल होगा, जहाँ पर यानी जिस पॉइंट पे आपके पास अटैच होता है OH ग्रुप, उसी पॉइंट पे जो है वो हेलोजन अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन ऑफ हेलोजन एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल जो है जब कंबाइन होते हैं तो उससे हमें वाटर मालिक्यूल जो हासिल होगा। लिहाजा दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा अल्काइल हैलाइड हासिल होगा, दूसरा जो है वो हेलोजन। ये तरीका भी जो है बेहतरीन तरीका है अल्काइल हैलाइड्स प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो वाटर है, और अल्काइल हैलाइड जो है और वाटर के साथ ये इमिसिबल होते हैं, ये उसमें डिज़ोल्व नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास अमूमन दो लेयर्स आ जाते हैं। उन दो लेयर्स को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं by separating funnels. So these are the reactions by which we can prepare alkyl halides or haloalkanes, and these are the reactions which have been given in your text book. अच्छा, ये भी याद रखें कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड आपको तैयार करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए आप ने ये करना होगा कि R जो है उसको चेंज करना होगा। यानी अगर मुझे कोई ये कहता है कि आपने बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाने के लिए मेरे पास जो सूटेबल रिएजेंट होगा वो क्या होगा? वो ज़ाहिरी बात है अल्कोहल से मैं बनाने लगा हूँ, तो 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए मेरे पास सूटेबल रिएजेंट जो है वो होगा 2 प्रोपेनॉल होगा। ये कंपाउंड जो है 2 प्रोपेनॉल। अब अगर आप इसमें से किसी के साथ भी इसको ट्रीट करते हैं, सपोज आप फास्फोरस हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, या थाइनॉल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपने सिर्फ ये करना है कि जहाँ पर वो OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसको आप हटा के उसकी जगह आप हेलोजन लगा दें, आपके पास वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से सादा सिंपल क्वेश्चन जो हैं बाज़ औक़ात इसमें नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा आपको दिमाग जो है वो लड़ाना पड़ेगा कि किस किस्म के प्रोडक्ट जो हैं आपको चाहिए, किस किस्म के प्रोडक्ट्स वो मांग रहे हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से बनेंगे। मिसाल के तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि कौन से रिएक्शन से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट बन सकता है, उसके लिए सूटेबल रिएजेंट क्या होगा, या आपको रिएजेंट दिए होंगे उससे आपको पूछा जा सकता है कि इससे प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा। मैं दो तीन जो है इसमें MCQs जो है वो अटैम्प्ट करके आपको देता हूँ और उसके सही जवाब जो है आपको बताता हूँ, आप उस पर गौर करें, इंशाल्लाह जो है आपके लिए बहुत मुफीद होगा।